From the rift between the Congress and the Aam Aadmi Party ahead of Delhi Assembly elections to the first Shahi Star of Mahakumbh, here are all the top stories for today. Hi, I'm Zara Swai and you're watching the Indian Express. Let's get started. Granted bail from A to Z. There is no difference between living in a cage and living in a false valley. The second day of the Mahakumbh Mela on Tuesday saw thousands of devotees and seers converge at the Sangam before sunrise to take the holy dip on the occasion of Makar Sankranti today. Now here's an express report. This. As Makar Sankranti 2025 marked the first Amrit Snan, also known as Shahi Snan or Royal Bath, devotees took a holy dip at Triveni Sangam at Mahakumbh in Prayagraj. Over 2 crore people are expected to take a bath at the Sangam on Tuesday. Kumbh began with a record gathering of over 1.5 crore devotees on January 13th. The day will begin with sadhus of different akhadas from across the country taking holy dip at the Sangam. While entry for the general public would be restricted during this time, each akhadas has been given a different time slot for the snan or the bath. The bath will start with Panchayati Akhada Mahanirvani and Shambhu Panchayati Atal Akhada at 6:15 am. 9 police teams would ensure all 13 akhadas take their holy dip one after another, a process expected to continue until evening. पहला अमृत स्नान जो है अभी चालू होने वाला है 5:15 बजे महानिर्वाणी अखाड़े का यहाँ से शाही स्नान के लिए निकलेगी, जो यहाँ से सवारी निकलेगी उसी की व्यवस्था में हम लोग हैं और हमारी पुलिस टीम्स वो लेके जाएंगी संगम स्नान कराने के लिए। उसके बाद फिर दूसरी टीम लेके जाएगी। इस प्रकार 9 टीम्स जाएंगी टोटल। 13 अखाड़े वो 9 टीम्स में जाते हैं जो बारी बारी से जाएंगे, तो शाम तक यही चलेगा। सुरक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी है। हमारे चारों तरफ टीम्स हैं, सुरक्षा टीम्स, सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस, स्टेट फोर्सेस, वो ही सब अपने सुरक्षा में हम लोग लेके चलते हैं। हम लोग आगे आगे रहेंगे और साइड में पीछे फोर्स रहेगी और अखाड़े रहेंगे। Mahakumbh is being held after 12 years and has been set up at around 4,000 hectares and will continue till February 26th. News from the national capital Delhi elections battleground is heating up. The Congress leader Rahul Gandhi attacking Aam Aadmi Party's national convener Arvind Kejriwal for making false premises, and Kejriwal accusing Congress and the BJP of being secret allies. This has led to a spark of rift between the Congress and the Aam Aadmi Party, and with most partners extending their support to the Aam Aadmi Party in Delhi elections. Here's what happened between Arvind Kejriwal and Rahul Gandhi. The gloves are off. As Delhi gears up for Delhi Assembly elections, the political battleground is heating up. केजरीवाल जी से पूछिए और उनसे कहिए कि वो पब्लिकली कहें, देश के सामने कहें कि वो रिजर्वेशन बढ़ाना चाहते हैं और वो जाति जनगणना करवाना चाहते हैं। मैं कुछ नहीं बोलूंगा उनके खिलाफ। वो अपनी पार्टी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, मैं देश को बचाने की कोशिश कर रहा हूं। In a retort to Congress's Rahul Gandhi, Aam Aadmi Party chief and former Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal dropped a bombshell accusing BJP and Congress of being secret allies for decades. Early on Monday, in a direct attack on Congress leader, Kejriwal said Rahul Gandhi was unfairly targeting him and abusing him, and that Congress's fight is to save themselves, whereas his fight is to save the country. But his accusations did not stop there. On Tuesday, he reposted BJP's Amit Malviya's post on X and took a sharp jibe at Congress. वो तो दिख रहा है सबको। राहुल जी के बयान के ऊपर मैंने यही कहा कि मैं इस पे टिप्पणी नहीं करूंगा। उसका जवाब कांग्रेस ने नहीं दिया, उसका जवाब बीजेपी के एक बड़े नेता ने दिया। तो ये सारे बीजेपी और कांग्रेस मिलके दिल्ली की जनता के खिलाफ और दिल्ली के लोगों के खिलाफ और आम आदमी पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। अब इसमें कोई शक नहीं रह गया, कोई गुंजाइश नहीं रह गई है। जो पर्दे के पीछे का गठबंधन था, इस बार वो दिल्ली के चुनाव में पर्दा उठ गया है।
Earlier, Rahul Gandhi took direct pot shots at Kejriwal, his posts calling out the AAP leader for misleading the public and for being soft on BJP's policies. आप पूछिए जाके, केजरीवाल जी से पूछिए और उनसे कहिए कि वो पब्लिकली कहें, देश के सामने कहें कि वो रिजर्वेशन बढ़ाना चाहते हैं और वो जाति जनगणना करवाना चाहते हैं। हमारी सरकार आएगी दिल्ली में, एकदम हम जाति जनगणना करके दिखाएंगे और सबको पता लग जाएगा, दलितों को पता लग जाएगा कि आपकी दिल्ली में, दिल्ली की सरकार में, दिल्ली की संस्थाओं में, दिल्ली के गवर्नमेंट में कितनी भागीदारी है। आपको पता लग जाएगा, पिछड़ों को पता लग जाएगा कि आपकी कितनी भागीदारी है। आज जहां भी आप जाते हो, सरकार की संस्थाओं में आप जाओ, अस्पतालों में जाओ, प्राइवेट अस्पतालों में जाओ, प्राइवेट कॉलेजेस में जाओ, आपको पिछड़े वर्ग के लोग नहीं मिलेंगे, आपको दलित नहीं मिलेंगे। यह सच्चाई है हिंदुस्तान की। और जाति जनगणना एक क्रांतिकारी काम होगा। मैं आपको कह रहा हूं, दिल्ली की सरकार आएगी तो यहां करेंगे और नेशनल लेवल पे लोकसभा में मैंने वायदा किया, हम उसको पूरा करके दिखाएंगे। केजरीवाल जी आए थे, आपको याद होगा, शीला जी की सरकार थी, आपको याद है, वो दिल्ली याद है आपको। और केजरीवाल जी आए और केजरीवाल जी ने बहुत बड़ा प्रचार किया, दिल्ली को मैं साफ कर दूंगा, भ्रष्टाचार मिटा दूंगा, पेरिस बना दूंगा। अब देखिए हुआ क्या। आप देखिए, बाहर चला नहीं जा सकता है, ऐसा पोल्यूशन है, बाहर चला नहीं जा सकता है, आधे लोग बीमार रहते हैं, कैंसर बढ़ रहा है, पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है। और उन्होंने कहा था कि भ्रष्टाचार को अरविंद केजरीवाल जी मिटाएंगे। अब आप बताइए, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी ने भ्रष्टाचार मिटाया क्या? मिट गया। तो जैसे प्रचार नरेंद्र मोदी जी करते हैं मीडिया का, झूठे वायदे, एक के बाद एक झूठे वायदे, वैसे ही स्ट्रेटेजी केजरीवाल जी की है। भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी होने के नाते, बड़ा भाई होने के नाते दिल्ली में सबको संभाल कर आगे जाने की जिम्मेदारी बीजेपी की रहती थी। वैसे ही कांग्रेस पार्टी हमारे अलायंस में एक बड़ी पार्टी है। अगर कांग्रेस बड़ी पार्टी है, कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है, नेशनल पार्टी है, एक इतिहास है उनका, तो हम सबको एक साथ लेकर लीडरशिप करने की जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी की ही होनी चाहिए। ये हमारी हमेशा राय रही, उद्धव ठाकरे साहब की भी राय रही। और डायलॉग होना चाहिए हमेशा। अगर डायलॉग नहीं होगा तो कौन सी भी युति, अलायंस, फ्रंट, ये ज्यादा दिन तक सर्वाइव नहीं करते। An explosion in Jammu and Kashmir's Rajouri district on Tuesday injured 6 soldiers during routine patrolling along the line of control in the Naushera sector. The soldiers have been evacuated to a hospital and the area has been cordoned off as officials investigate the cause of the blast. Meanwhile, Defence Minister Rajnath Singh, addressing a function in Jammu, issued a stern warning to Pakistan against using the POK for terrorist activities. In other news, RSS chief Mohan Bhagwat has claimed that India achieved true independence on the consecration day of the Ram temple in Ayodhya, inviting criticism from the Shiv Sena's UBT faction. Speaking at an event in Indore, Bhagwat said that the consecration day should be celebrated as Pratishtha Dwadashi, symbolizing the establishment of India's sovereignty over centuries of Parachakra, which is foreign invasion. अनेक शतकों से परचक्र झेलने वाले भारत के सच्चे स्वतंत्रता की प्रतिष्ठा उस दिन हो गई। स्वतंत्रता थी, प्रतिष्ठित नहीं थी, क्योंकि भारत स्वतंत्र हुआ 15 अगस्त को।
वो राजनीतिक स्वतंत्रता हमको मिल गई। हमारा भाग्य निर्धारण करना हमारे हाथ में आ गया। हमने एक संविधान भी बनाया, एक विशिष्ट दृष्टि जो भारत के अपने स्व से निकलती है, उसमें से वो संविधान दिग्दर्शित हुआ। लेकिन उसके जो भाव है उसके अनुसार चला नहीं। और इसलिए हो गए हैं स्वप्न सब साकार कैसे मान ले, टल गया सर से व्यथा का भार कैसे मान ले, ऐसी मनस्थिति समाज की। क्योंकि जो आवश्यक स्वतंत्रता में स्व का अधिष्ठान होता है वो लिखित रूप में संविधान से हमने पाया, लेकिन हमने अपने मन को उसके पक्के नींव पर आरूढ़ नहीं किया। That's all for today, but leaving you with visuals of snow skiing training course in Doda district, Jammu and Kashmir.